नमस्कार। सेल ट्रैक के 93 एपिसोड के साथ भिलाई इस्पात संयंत्र से मैं शालिनी चौरसिया। इस एपिसोड में आप सभी का सेल ट्रैक टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। Hello, I'm Abhishek Srivastava from SAIL Bhilai Steel Plant. You are most welcome to this episode of SAIL Track. आइए रूबरू होते हैं सेल के हाल के परफॉर्मेंसेस, अचीवमेंट्स, हैपनिंग्स और बाकी महत्वपूर्ण खबरों से। आइए शुरुआत करते हैं केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री के भिलाई इस्पात संयंत्र के दौरे की खबर से। माननीय केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने 17 सितंबर 2024 को सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ सेल अध्यक्ष श्री अमरेंदु प्रकाश और संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दासगुप्ता मौजूद थे। माननीय इस्पात मंत्री ने संयंत्र के कोक 1 बैटरी नंबर 7 तथा 8, ब्लास्ट फर्नेस 8, स्टील मेल्टिंग शॉप 3 और यूनिवर्सल रेल मिल की उत्पादन प्रणाली से रूबरू हुए। माननीय केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सेल भिलाई इस्पात संयंत्र न केवल उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन कर रहा है, बल्कि राष्ट्र और पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस दौरान श्री कुमारस्वामी और सेल अध्यक्ष ने स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत श्रमदान किया और संयंत्र के विभिन्न क्रॉस फंक्शनल समूहों तथा अधिकारियों और कार्मिकों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। Recently, a report of Ministry of Steel, Government of India titled Greening the Steel Sector in India, Roadmap and Action Plan was released by Honorable Minister of Heavy Industries and Steel, Shri H.D. Kumarswamy. Secretary of Steel, Shri Sandeep Pondrik, former Secretary of Steel, Shri Nagendra Nath Sinha, SAIL Chairman, Shri Amrendu Prakash, and Joint Secretaries of Ministry of Steel, Shri Vinod Kumar Tripathi and Shri Abhijit Narendra were also present during this occasion. हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने सेल के साथ मिलकर इस्पात सचिव श्री संदीप पौंड्रिक के नेतृत्व में नई दिल्ली के नेहरू पार्क में स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया। सेल अध्यक्ष श्री अमरेंदु प्रकाश, इस्पात मंत्रालय और सेल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में कार्मिकों ने इस दौड़ में भाग लिया। स्वच्छता दौड़ इस्पात मंत्रालय और सेल द्वारा स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत शुरू किए गए पहलों में से एक है, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक मनाया जा रहा है। A digital booklet on CSR initiatives of SAIL titled हर आंख में चमक सेल इस्पात की was launched on 23 September 2024 by Chairman SAIL Shri Amrendu Prakash and other SAIL board members at SAIL Corporate Office, New Delhi. हर आंख में चमक सेल इस्पात की booklet offers glimpses of SAIL's commitment towards making the lives of people living in and around SAIL Township better in myriad ways. The digital booklet is available on SAIL's corporate website, that is www.sail.co.in. सेल के नई दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस्पात मंत्रालय और सेल से बड़ी संख्या में सफाई मित्रों ने इस शिविर का फायदा उठाया। A 10 kWp on-grid solar tree was inaugurated on 3rd September at SAIL ISP by DIC Shri BP Singh. The solar tree is expected to generate 12,000 units of electricity per year and to reduce carbon footprint by 11.6 tons per year. With this, the total solar power installation at ISP is now 6.126 MWp for rated generation of around 9.189 million units per year. That is expected to reduce CO2 emission by 7416 tons per year.
Internet of Behaviors, that is IOB, is a revolutionary approach that harnesses the power of data to shape human behavior. IOB can identify patterns, trends, and individual preferences. A ride-sharing service can use IOB to monitor driver behavior such as speed, braking patterns, and adherence to traffic rules. By analyzing this data, the service can identify high-risk drivers. Answer of Sail Track Quiz 92. The Agra-Lucknow Expressway, showcased in the 92nd episode of Sail Track, is a remarkable infrastructure project made possible by Sail's steel supply of 33,500 metric tons. This expressway, located in Uttar Pradesh, also functions as an airstrip for the Indian Air Force. Despite their impressive knowledge and observation skills, none of the participants correctly identified the name of the project and its location. चलते चलते आपके लिए पेश है यह तस्वीर। आपको बस पहचानना है कि यह फोटो जिसमें सेल स्टील का इस्तेमाल हुआ है किस परियोजना की है और कहां स्थित है। सेल के फेसबुक पेज के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले सही जवाब देने वाले 5 प्रतिभागियों के नाम सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में प्रसारित किए जाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में। अनुरोध है कि सेल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही सेल के सोशल मीडिया पेज और हैंडल्स को जरूर से जरूर फॉलो करें ताकि सेल से जुड़ी खबरों और जानकारियों से आप लगातार जुड़े रहें। शुक्रिया और धन्यवाद।